आधारशिला। वेलकम सर। जैसे सूरज के आने से चारों ओर उजाला होता है, वैसे आज हर दिल में जगी है। सलामत रहे आपका ये उज्जवल व्यक्तित्व, आपके आने से ये मंच सदा सर्वदा गौरवान्वित होता है। अरुणाचल प्रदेश कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के नवा सामान्य सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में brighter future. Good morning, ladies and gentlemen. It is with immense pleasure and honor that I welcome you all to the 9th General Conference of Arunachal Pradesh College Teachers Association at JM College, Pasighat. The words of इससे भेंट प्रदान करके उनका सम्मान करें। सभी से तालियों की अनुरोध करना चाहूंगी हमारे कैप्टन तारामूर्ति सर को। सर आप and commitment to empowering educational institutions have made him a respected figure in the policy-making sphere. His consistent advocacy for a more holistic approach to student development, integrating health and education, has brought of students and educators alike. Please join me in welcoming Sri Muchunithi to share his thoughts with us. Good afternoon, everyone. Today's guest of honor, Honorable Advisor Education and Home, Sri Muchunithi ji. We have one of the senior most member in the Legislative Assembly, Sri Ninang Mereng ji, and Technical Education. And along with him, we have the keynote speaker of today's conference, one of the pathfinder and a very senior educator, Sri Joram Begi ji. And most importantly, the President, Dani Kacha ji, and his General Secretary, Dr. Tadun Ruti ji, and the Chairman of the Organizing Committee, Sri Agim Tawaji, and Dr. Leki Wanga, the Secretary, the Organizing Secretary.
and all the executive body members of APCTA, principals from different colleges and the faculty members, guests present here in this hall and on the dais, and media friends. I think we are late by almost an hour schedule, and it becomes very difficult to listen to lecture after such a long, tiring lecture session from each and every one. But like my advisor, whom I consider a spine in the ministry, he has said, "आप लोग lecture देते रहते हैं, आप लोगों को भी lecture सुनना पड़ेगा, है ना? So you have to hear our perspective." सुन लिया. And Dr. Devi ji has talked about today's theme, the higher education in Arunachal Pradesh, retrospect and prospect. तो retrospect के बारे में बहुत ही डिटेल में बताते हैं और हमें भी एक इंसाइट मिला कि तब क्या होता था और आज क्या हो गया. But when we talk about the prospect, Arunachal Pradesh, I would have firm believe that the prospect lies in strengthening the elementary education. जब तक हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन ठीक नहीं होगा, हम ऊपर में आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, जितना अपॉइंटमेंट कर दो, जितना फैकल्टी मेंबर बढ़ा दो, जितना कोर्सेस इंक्रीज कर दो, वी आर नॉट गोइंग टू यील्ड एनी क्वालिटी. सो द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, खास करके हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारा यही कोशिश है कि हाउ टू बी गो इन फॉर ए करेक्टिव मेजर. तो सबसे पहले जब इलेक्शंस के बाद जब मिनिस्ट्री में इंडक्ट हुआ एंड व्हेन आई वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो मैंने क्या देखा, इट वाज अ रॉकिंग चेयर, but it keeps moving but it takes you nowhere, and we thought that we must put the education system on wheel back. We have lost enough time. And we have a system. हमारा एजुकेशन का एक सिस्टम था, but we need a different system now. तो जो उस सारा कमजोरियों को हमने मंथन करके, जैसे हमारा सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, तो आप लोगों को देखा होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने ये पिछले 6-7 महीने में रिगोरस एक्सरसाइज करके वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर द प्रॉब्लम लाइज, वेयर इज द हेडविंड, रोड ब्लॉक्स कहां पे है. And we realize that we must accept our weakness. जब तक हम अपना कमजोरी छुपाता रहेगा तो we will get nowhere. To hide our weakness, तो हम ओपनली हमने अपना वीकनेस सब लोगों के सामने रखा. At the same time जो उस वीकनेस को हम कैसे अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, उस पर हमने ज्यादा ध्यान दिया. So the headwind we have turned into a tailwind now. तो अब इसमें आपको गति मिलेगा. हमारा एजुकेशन सिस्टम जो बहुत बिछड़ गया है उसको वापस ट्रैक में लाने के लिए आपको अभी एक गति मिलेगा. सरकार, मुख्यमंत्री या मंत्री या एडवाइजर अकेले से काम नहीं होगा. Like I always say, it has to be a collective effort. All the stakeholders has to come together. सबको मिलना पड़ेगा. और हमारा खास करके हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, हर लोग कोई भी है, सब लोग कन्वीनियंटली बोलता है पॉलिटिकल विल के ऊपर में छोड़ देता है, कि बोलता है कि पॉलिटिकल विल नहीं होगा तो कुछ ही नहीं हो सकता. तो पॉलिटिकल विल को कमजोर कौन करता है, ये भी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा ना. तो हमारा जैसे करें, लेकिन उसको प्रेशराइज कौन करता है गलत करने के लिए, रूल तोड़ने के लिए. क्योंकि इनको 5 साल के बाद फिर रिन्यूअल के लिए जाना, अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कराना है. तो रिन्यू कौन करता है, जनता जनार्दन है. तो जनता जनार्दन को इस तरीके से खुश करेगा या उस तरीके से खुश करना है, किस तरीके से खुश तो करना पड़ता है. तो वी succumb to their pressure, and when things fall in the government, and हम आराम से सरकार के ऊपर उंगली दिखा देते हैं कि सरकार ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा. तो सरकार तो हमेशा से नहीं होता. सरकार अकेला क्या करेगा जब तक हम सब मिलकर नहीं करेंगे. हमारे लोगों में ओनरशिप नहीं है. अब स्कूल के लिए जमीन तो दे देता है, लेकिन ओवर द टाइम एनक्रोच करने लगता है. स्कूल का बिल्डिंग बना देता है, उसको तोड़ फोड़ कर देता है. द सेंस ऑफ ओनरशिप इज नॉट देयर. तो आप पॉलिटिकल विल का बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल अंडरस्टैंड दिस टाइम यू नो वेरी कन्वीनियंटली ब्लेम
people by saying कि ये कुछ नहीं कर रहा। तो हमेशा से मेरा यही मानना है कि हमको सब मिल के इसको बनाना है। That's why we have tried to reach to each and everyone at the government level, at the panchayat level, at the NGO level, at the stakeholders, SMCs, हर किसी के पास जाके डिस्ट्रिक्ट जाके हमने कंसल्टेशन किया है, क्या कर रहा है। फिर वो रास्ते में निकाल के मार्च करने लगे कि हमारा स्कूल क्यों बंद हो गया, हमारा कॉलेज क्यों बंद हो रहा है। But I'm happy that now people of Arunachal understand the kind of movement we are doing to improve the education system in Arunachal Pradesh. Like my advisor has said, we are focusing on equality. और हमारा जो प्रॉब्लम था, द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैकिंग, जहां मीटर में कोई स्कूल बना हुआ, 2 स्कूल मिलेंगे, 150-200 मीटर में भी स्कूल है। तो इस तरीके के जो स्कूल हर जगह बन गया है एंड जो हमारा सरकार का रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो बहुत सारा चीजें हैं जो उसको हम लोगों ने लेके बहुत सारा मंथन किया एंड द क्रक्स ऑफ द होल थिंग जो चर्न करके जो हमें एक जो सोल्यूशन मिला है, रादर देन गोइंग इनटू कॉस्मेटिक सर्जरी एट द टॉप लेवल। कभी कभी आप लोग डिस्ट्रिक्ट में जाता है तो लोग बोलते हैं सर हमारा इस साल का क्लास 10 का 12 का रिजल्ट में इतना इजाफा है, 10% हमने इंप्रूव किया है। Those are very temporary. Those are not a sustainable way of improving the quality of education. वो आप रटा फटा के कोचिंग करा के शायद बढ़ा भी दिया हो, लेकिन that is not going to take you anywhere. We must understand that जब तक बच्चों का जो बेस है उसको ऊपर लेके जाओगे तो ultimately you will be nowhere to compete. तो इस चीज को हम लोगों ने काफी ध्यान देके हम लोगों ने सोचा है कि किस तरीके से इसको हमें हमारा जो एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको कैसे चेंज करना है। वी मस्ट हैव अ पैरेलल शिफ्ट इन आवर अप्रोच। जो चल रहा था उसमें कुछ नहीं कर पाया तो आपको अपने तरीके से कुछ नया सोच लेके नया तरीका लेके इसको आगे लेके जाना है। And that roadmap we have discussed it with each and everyone. We have discussed in the cabinet, we have discussed in the legislative party meet, and we have finally discussed in the floor of the house, so that everyone comes to know what is the intention of the government और इससे कितना लोगों को फायदा होने वाला हमारा एजुकेशन सिस्टम जो अब लड़खड़ा रहा है उसको स्थिरता कैसे देंगे, उस पे हमारा फोकस है। एक्सरसाइज किया है, इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज, आई नो हर तरह का नया कुछ न कुछ आता रहेगा, बट वी आर रेडी टू इनकॉर्पोरेट न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेशंस, न्यू सजेशंस कमिंग अलोंग द वे एंड वी ट्राई टू इम्प्रूव द सिस्टम। इसलिए हमारा अभी जैसे हमारा मुख्यमंत्री जी ने बोला कि सरकार की तरफ से इस बार बजट में 3,000 करोड़ हमारा एजुकेशन के लिए ईयरमार्क किया है। दैट विल बी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सॉफ्टवेयर, दोनों को मिला के। एंड आफ्टर द बजट वाज अनाउंस्ड आई मेट द डिप्टी मिनिस्टर, आई सेड सर 3,000 भी शायद मेरे लिए बहुत कम पड़ेगा, इसलिए आप कंज्यूम करो, विल गिव मी एक्स्ट्रा मनी। दैट्स द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि आप लोग 3,000 आप इसी पे काम करो, ये नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि आप इसको कंज्यूम करो, हम और आपको देंगे, बट द एजुकेशन सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। और 3 साल का आपको टारगेट दिया है। ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ह्यूमन रिसोर्स गैप को किस तरीके से हम पुट इट इन प्लेस, और उसका जो विजिबल एंड द टेंजिबल चेंजेस आपको मिलेगा, दिखने को मिलेगा डाउन द लाइन 7-8 ईयर्स में मिलेगा। बच्चों में जो चेंजेस आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंज आ रहा है। तो 3 साल में हमारा रिगोरस अप्रोच वही है कि आप किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे, कि सिर्फ नंबर्स में नहीं क्वालिटी में भी करेंगे, तो कैसे आप टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि टीचिंग एंड लर्निंग इज अ वेरी डायनेमिक थिंग, क्योंकि हर समय उसका अपना तौर तरीका चेंज होता है। तो उस जमाने में जो जिस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाता था और आज जिस तरीके से पढ़ाना है बच्चों को, वो पूरा चेंज हो जाता है। समय का बात है, जरूरत के मुताबिक हमको बदलना भी पड़ेगा। एंड वी टॉक अबाउट हर क्लास में हमको ये होना है, स्मार्ट बोर्ड होना है, कंप्यूटर होना है। आज अगर आप देखेंगे स्वीडन हैज टेकन अ डिफरेंट अप्रोच अगेन। Sweden has kicked out all the smart classes now. They have gone to the conventional pen and paper and book. तो ऐसा है कि हर समय एक सिस्टम नहीं चलता, वो सिस्टम बदलते रहता है। तो उसको हमारा टीचिंग जो हमारा टीचर्स है उसको कैसे इक्विप करेंगे, उस पर भी मेजर फोकस होगा हमारे तरफ से,
सरकार की तरफ से, ताकि आर किड्स जब ऊपर चलेंगे तो उनको बिल्कुल पूरा तरीके से वो पूरा सशक्त होकर ऊपर जाए। आज का क्लास 7 का बच्चा क्लास 2 का किताब पढ़ नहीं पाता है, ये हालत है। तो अब हालत पे रोके तो फायदा नहीं है ना, तो करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ जर्नी ऑन द सेम रूट बट विद अ डिफरेंट अप्रोच। आगे जब बढ़ना है तो मैं बोला 3 साल का जो टारगेट है, जो हमको डेडलाइन दिया है, दैट बिकम्स एन एड्रेनलिन फॉर अस। उसको पूछ देने के लिए हम सरकार या मंत्री या एडवाइजर अकेले से नहीं हो, आप सबको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, द ओनरशिप देना पड़ेगा। देन वी ऑल मूव टुगेदर एंड ब्रिंग द चेंज मस्ट कम, क्योंकि हमारा समय बहुत निकल चुका है। हमको बहुत बहुत क्विक एक्शन करना पड़ेगा, तो विजिबल एक्शन लेके आना पड़ेगा, तभी जाके, जैसे अभी बोलता है जब भी मैं कहीं भी जाता हूं तो आपसे बहुत अपेक्षा है, आपसे बहुत उम्मीद है। तो हमारा बहुत सीनियर एमएलए ने उस दिन असेंबली के बाद मुझे मिला, ऑन अ वेरी नाइट नोट, बट बोला कि आपको तो बाहर में भी बहुत तारीफ मिल रहा है, असेंबली में भी बहुत तारीफ मिला है, आप बहुत रिस्क में है। हमें वही क्या रिस्क हो गया, तारीफ मिला तो मुझे रिस्क भी होना चाहिए। आप बहुत रिस्क में है, आपको 3 साल में परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये तारीफ जो गाली में बदल जाएगा। एंड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि मैं भी वेरी लाइट हूं, बट दैट कैरिंग इट। तो इसलिए मैं बोलता हूं हमको सबको एक साथ आना पड़ेगा, किस तरीके से हम आगे लेके जाएंगे। क्योंकि अभी जैसे आपका प्रेसिडेंट बोला कि एजुकेशन इज द ओनली वेपन टू बिल्ड अ नेशन। आपका एजुकेशन खराब हो गया तो आपका नेशन खराब, सोसाइटी खराब, सबको पता है। सिर्फ हम उसको लिप सर्विस में रख दिया कि हमारा एजुकेशन इज प्रायोरिटी। जैसे पहले से हो रहा है कि कुछ प्लानिंग करेंगे तो लोग एजुकेशन को बैक सीट पे रख देता है, हमको ये बिल्डिंग बनाना, हमको वो बिल्डिंग बनाना, हमारा ये हो गया, वहां पे रिटेनिंग वॉल बनाना है, वहां पे लैंड प्रोटेक्शन करना है, हमारे लोग पे ऐसे ऐसे स्कीम्स लेके आता है। तो इस तरीके का जो अप्रोच है, इस तरीके का सोच है, हमको उभर के आना पड़ेगा। एंड इट्स नॉट इजी, एंड इट्स नॉट सो इजी सेट दैट। तो आप तो बोलते हैं, बोलने में क्या है, लेकिन लोग भी समझता है बैक टू द स्क्वायर वन हो जाता है। तो इसलिए हमारा अप्रोच बदलना पड़ेगा, हमारा तरीका बदलना पड़ेगा, हमारा सोच बदलना पड़ेगा, तभी हम जाके जो हमने जो इतना साल जो हमने वेस्ट किया है, हमने जो अपना जो एजुकेशन सिस्टम को बद से बदतर बना दिया, उसको वापस लेके आना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, वो हमको भी पता है। जैसे हर कोई टास्क, लेकिन उम्मीद हमको छोड़ना नहीं चाहिए, तो उसको लेके हमको आगे बढ़ना है। वाई एम आई स्पीकिंग हियर बिकॉज यू ऑल आर इंटेलेक्चुअल। 2-4 है, फिर जाके बाकी 3-4 को जो एक आपका जो क्या बोलते हैं उसको डोमिनो इफेक्ट आएगा, उससे लोग फिर समझ में आएगा। एंड द फर्म बिलीव दैट वर्ड ऑफ माउथ कैंपेन इज मच स्ट्रॉन्गर देन हमने एडवर्टाइजमेंट पुट अप कर दिया या डिजिटल आपने प्रमोशन कर दिया कि एजुकेशन के बारे में, उससे ज्यादा आप लोगों के कहने से फर्क पड़ेगा। सो आई ईच एंड एवरीवन हू मैटर्स इन द सोसाइटी, जो लोग को पहुंचा पाएंगे और उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करके उसको हम आगे लेके जाएंगे। तो ज्यादा लंबा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे आप लोगों का यहां से भी जो मेमोरेंडम है, तो आप लोगों ने बोला कि 4-5 साल से पोस्ट पिलर, मतलब अलग अलग आपने टर्मिनोलॉजी यूज किया, पोस्ट पिलर क्या क्या करके घुमा इधर उधर। तो आई डोंट नो हाउ मच हार्ड वर्क यू हैव पुट बिहाइंड। तो आई मस्ट टेल यू दैट आई एम आल्सो न्यू इन द डिपार्टमेंट, एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट तो इज लाइक वो सागर की तरह है। आप डुबकी लगाएगा तो अलग अलग लेयर दिखाई देता है, इसको समझने लगेगा तो पता चलता है इसमें और कुछ झोल है, उसको ठीक करने जाएगा तो उधर इस में आता अभी समझ गया, मुझे इस सारा कुछ फिर पता चलता कि कुछ और जगह है, कुछ और चीज इसमें है, तो उसको मुझे भी समझने में थोड़ा समय लगेगा। आई मस्ट ऑनेस्टली टेल यू दैट आई वाज फोकसिंग मोर ऑन एलिमेंट्री। आपका ये सारा हायर एजुकेशन मुचुमिकी ने बोला है इज द स्पाइन इन माय डिपार्टमेंट, इन माय मिनिस्ट्री। तो इसका टास्क मैं थोड़ा फॉलो अप करने के लिए मैं हमारा मुचु जी का चेयरमैनशिप में इसको पूरा फॉलो अप करने लगे। और क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्यों सकता है उसके रूल गेट बैक टू मी। तो मैं अभी पॉइंट बस आपको नहीं बोल पाऊंगा कि क्योंकि सिंस आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट द होल थिंग। आपका ये जो क्या बोलते हैं कि ग्रांट ऑफ
प्रोफेसरशिप, इसके बाद ये बाकी एज का भी जो एनहांसमेंट वगैरह का, तो ये हम पता करेंगे आपका इतना साल से पढ़ा हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कुछ कारण होगा। देयर मस्ट बी सम वे आता है जहां पे कोई इसका जो रूल परमिट नहीं कर रहा होगा, बहुत कुछ हो सकता है। तो उसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करके, बहुत नेगेटिव, जैसे आपका जनरल सेक्रेटरी बोल रहा है कि आपसे बहुत अपेक्षा है, बहुत उम्मीद है, तो मुझे एक चीज याद आता है, बोलता है होप इज अ गुड ब्रेकफास्ट बट अ बैड सपर, इसलिए ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए आपको। आप उम्मीद नहीं रखते, आपका होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप उम्मीद रखते रखते नहीं होगा तो आप टूट जाओगे, और उम्मीद करने के बाद अगर होता नहीं तो उसका आपको इतना मीठा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप यहां से जब है ना, तो दिस लाइक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला थोड़ा सा बात होता है ना, तो इसलिए ये इट्स अ लाइट नोट, बट इसको जो भी है इसमें हमारे तरफ से कोशिश करेंगे। और कुछ होता है जैसे बोलते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भीख, तो आप हिंदी के प्रोफेसर में पता होगा इससे। आप मांगने जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं मांगोगे, लेकिन आप अपना काम सही तरीके से करोगे तो आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। 35 जो आप लोगों ने फैकल्टी का जो कमी का बार हुआ, 135 हमारे ये जितने भी वेरियस पोस्ट के लिए हमने ऑलरेडी एपीसीएस को रिक्वेजिशन दे दिया है, हमारा हायर एजुकेशन के लिए स्कूल का नहीं ये है। और लोग हमारे पास आया था कि मास कम्युनिकेशन और सोशियोलॉजी भी इंट्रोड्यूस होना है, तो हमने अप्रूव कर दिया, ऑर्डर कभी भी निकल जाएगा, तो उसको हमने अप्रूवल दे दिया। आपका मास कम्युनिकेशन का हमने देरानाथ कॉलेज में, और हमने देख रहा है कि आपका टेक्निकल सेशन वगैरह भी है, तो उसको लेके मेरा तरफ से आप सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेष। एंड when it comes to education, I must tell you, I must reiterate that government of Arunachal is fully committed, और एजुकेशन सिस्टम जो हमने इतना साल जो हमने वेस्ट कर दिया, वेस्ट नहीं करेंगे हम, जो इतना साल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम पे जो थोड़ा कमजोर हुआ है उसको किस तरीके से रीइंफोर्स करेंगे, किस तरीके से उसको और मजबूत बना के नया दिशा, एक नया अरुणाचल बनाने के लिए, शिक्षित अरुणाचल, विकसित अरुणाचल बनाने के लिए सरकार की तरफ से जो पहल है उसको हम जारी रखेंगे। बट एट द एंड वी ऑल नीड टू पार्टिसिपेट एंड वी ऑल नीड टू हैव द ओनरशिप व्हेन वी वांट टू अचीव दिस। अकेला पीटी सोना पेमा खान या मुचुमिकी से होगा नहीं, वी ऑल मस्ट बी स्टेक होल्डर इन दिस। हम सब भागीदार बनके इसको आपको आगे ले जाना है फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर किड्स, कि हमारा आने वाला पीढ़ी को सोच के हमें सबको इस पर मिलकर आपको आगे चलना पड़ेगा, तभी जाके हमें शिक्षित अरुणाचल देख पाएंगे। अब जब अरुणाचल शिक्षित हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं करना पड़ेगा। ये ड्रग अब्यूज का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, जितने भी जो सोशल इव्यूज है, इसका एक ही इलाज है, एक ही निवारण है, शिक्षा। एजुकेशन इज द पैनेशिया टू ऑल सोशल इव्यूज, ये हमारा स्वामी विवेकानंद ने बोला था। तो इसलिए हम सबको इस पे बहुत जोर जोर से ध्यान देना पड़ेगा, ताकि रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए, नाला बनाने के लिए, या तो लैंड डेवलपमेंट को छोड़ के चिल्ड्रन इज इन्वेस्टिंग इन द कंट्री, इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर ऑफ एवरीवन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो उस चीज को लेकर मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई इस कॉन्फ्रेंस के लिए, और जो नया प्रेसिडेंट चुन के आएंगे, नया एग्जीक्यूटिव बॉडी चुन के आएंगे, उनको भी मेरे तरफ से एडवांस कांग्रेचुलेशन, और उम्मीद करता है कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ योर ओन कम्युनिटी, मतलब टीचिंग और होने वाला सजेशन लेके आएंगे। ऐसा नहीं कि आप नहीं होने वाला प्रपोजल्स लेके आएंगे, फिर वो जाके बोलेगा कि आप नहीं किया था, हम धरना में बैठ जाएंगे, तो गलत अप्रोच हो जाएगा, है ना। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट एंड यू मस्ट, और हमको जैसे आपको कुछ कुछ है डिमांड्स है, जेन्युइन है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार का क्या तकलीफ है, वो भी देखना पड़ेगा। जब सरकार प्लान करता है तो सरकार अपना जेब कितना गहरा है वो देख के प्लान करता है। गवर्नमेंट ऑफ द वांट्स कि सब कुछ ठीक होना है, लेकिन वो ठीक होने के लिए मेरे पास कितने धनराशि है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धन जबरदस्ती करके फिर कल हम उसी की वजह से हम फिर सरकार को एक बैकलैश होगा, सरकार को क्रिटिसिज्म होगा, इस तरीके का काम हम नहीं करेंगे, काफी फूक फूक के काम करेंगे। इट विल बी द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इट विल बी द लार्जर इंटरेस्ट फॉर आवर ओन पीपल। तो इस चीज को आप लोग जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा। सरकार की तरफ से कोई भी अच्छा इनिशिएटिव होता है आप लोग भी अप्रिशिएट करेगा, काम करेगा, अप्रिशिएट करेगा, उनका एनर्जी ढूंढना होगा। अच्छा काम कर रहा है कोई अप्रिशिएशन है, गलती से कुछ चूक हो गया तो बस सोशल मीडिया में, न्यूज में, जहां तहां कोना कोनी में सिर्फ गाली बकेगा, तो उसका कोई इलाज नहीं है। डिमोरलाइज योर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव।
आपका एमएलए भी अच्छा काम करता है, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं।